Circle chapter, textual exercise, exercise 10.1. The center of the circle lies in dash of the circle. The center is inside the circle, therefore answer is interior. A point whose distance from the center of the circle is greater than the radius lies in exterior of the circle. सेकेंड वाला क्या कहता है? सर्कल है और उसका एक सेंटर है. A point, let me take this as a point, whose distance from the center, this is the distance from the center, is greater than the radius. Of course, the blue line is greater than the radius red line. Then the point is in exterior of the circle. ऐसा सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं that if the distance of the point from the center, if the distance of the point from the center is less than the radius, then the point is in the interior of the circle. और अगर कहा the distance of the point is equal to the radius, then answer will be the point is on the circle. So inside the circle, outside the circle, on the circle. Longest chord of the circle, answer is diameter. ये बाय हार्ट कर लो किसी भी सर्कल में. दिस इज अ कॉर्ड, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये उससे भी बड़ा कॉर्ड, और ये सबसे बड़ा कॉर्ड जो एक्चुअल में डायमीटर है. और फिर आगे जाओगे तो कॉर्ड छोटे हो जाते. So the longest chord of the circle is the diameter. An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. एक ऐसा आर्क जिसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, मतलब ये, तो ये आर्क को क्या कहेंगे? Answer is semicircle. So an arc is a semicircle when the endpoints are the ends of diameter. Segment of a circle is the region between arc and dash. पहले segment draw करो. This is a segment, and this segment is a region between the chord and the arc. So arc and chord of the circle. A circle divides the plane on which it lies in 3 parts. कोई भी प्लेन, कोई भी फ्लैट सरफेस या कोई भी पेपर पे सर्कल ड्रॉ करो तो इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल 3 ऑप्शन होते हैं, देयरफॉर 3 पार्ट्स. ट्रू और फॉल्स? Line segment joining center to any point on the circle is radius. True. Line segment joining the center to any point on the circle is the radius. A circle has only finite number of equal chords. False. एक सर्कल के पास इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स होते हैं. इक्वल कॉर्ड्स मतलब से मान लो मैं 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 5 सेंटीमीटर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं. चारों तरफ 5 सेंटीमीटर के कॉर्ड्स आ सकते हैं, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स. इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क. दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. सर्कल के 3 इक्वल टुकड़े करो, तो 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे. घड़ी सबको समझ में आती है, क्लॉक. तो 3 टुकड़े सर्कल के इस 12 o'clock, 4 o'clock एंड 8 o'clock पे 3 लाइन कर दो तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए. तो ये एंगल कितना हुआ? So total angle is 360 degree
और 360 के जब 3 भाग करोगे तो 120 डिग्री। और एक रूल है कि इफ द एंगल इज लेस देन 180 it is minor arc, and if the angle is more than 180 then it is major arc। तो यहाँ पे जो 3 आर्क बन रहे हैं वो तीनों तीन का एंगल 120 डिग्री है। therefore this arc is major arc is false, it's a minor arc क्योंकि एंगल लेस देन 180 है। A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle, it is true। एक ऐसा chord जो रेडियस का डबल है, तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का chord तो अपने आप डायमीटर ही बनेगा कंपल्सरी। आंसर इज ट्रू। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन chord एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। chord और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क का रीजन, इसको सेक्टर नहीं सेगमेंट बोलते हैं। देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ट्रू। थियरी है ये, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बाप बेटा रिलेशनशिप, इफ द मिडल एंगल इज 2x तो ऊपर वाला उसका आधा है x और नीचे वाला उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस x। Exercise 10.2, recall that two circles are congruent if they have same radius. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. Equal chords congruent circles, तो पहले फिगर ड्रॉ करो। congruent circles मतलब एग्जैक्ट सेम दो सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स तो सेम कॉर्ड। प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहले गिवन इज सर्कल विथ सेंटर O, radius R, and circle with center P and radius R। Also AB is equal to CD। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस सेम है तो दोनों का रेडियस आर आर है और सेंटर अलग अलग है। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी मतलब कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी की लंबाई सेम है। प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इतना इजी है ये। अब लिखो टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, मतलब सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होता है कॉर्ड की वजह से वो दोनों में सेम है। ये प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव? सुपर डुपर इजी। यू हैव टू चूज टू ट्राइंगल्स। इन triangle OAB and triangle PCD, OA is equal to PC। Reason? because radius are same, क्योंकि congruent circles है। OB is equal to PD, again radiuses and radius are same,
ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स आर सेम या गिवन, दोनों चलेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी या पी सी डी। कौन सा थियरम अप्लाई किया? एस एस एस। और एस 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 थियरम के हिसाब से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी के सामने का एंगल और सी डी के सामने का एंगल सेम है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, सी पी सी टी, सम ओवर। Prove that if chords of the congruent circle subtend equal angle at the center, then the chords are equal. Very very easy. दो सर्कल बनाओ क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा है। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो दोनों के पास कॉर्ड्स है अपने अपने, और वो कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल क्रिएट कर रहा है। Prove that chords are equal. See how funny language is. पहले दो शब्द और लास्ट तीन शब्द का एक सेंटेंस बनता है। प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। नाम दो सेंटर ओ पी, कॉर्ड ए बी सी डी। दिस इज रियली वेरी इजी। गिवन सर्कल with center O, radius R, and circle with center P, radius R, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गया। इक्वल एंगल्स, गिवन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD। टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD। अब प्रूव करने के लिए तुम्हें दो ट्राइंगल को कंपेयर करना है, एंड इट इज सो इजी। प्रूफ इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी, ओ ए इज इक्वल टू पी सी, रेडियस है, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है। ओ बी इज इक्वल टू पी डी, रेडियस, and angle AOB is equal to angle CPD given। तो OA PC, OB PD and angle AOB angle CPD। तो ये तो SS थियरम हो गया, और SS थियरम के हिसाब से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर AB is equal to CD, CPCT, sum over। 10.3 exercise, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common and what is the maximum number of common points? It's a fun sum। पेयर ड्रॉ करनी, पेयर ऑफ सर्कल मतलब दो सर्कल्स, तो कितने इंट्रैक्शंस पॉसिबल है? दूर दूर, मतलब नो पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। जस्ट टचिंग ईच अदर, मतलब वन पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। एक के अंदर एक, अगेन एक के अंदर एक, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइडिंग।
तो दो सर्कल अलग अलग है तो 0 पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन, दे आर टचिंग 1 पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। एक के अंदर एक है, नो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन और इंटरसेक्शन, टचिंग फ्रॉम इनसाइड 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्रॉसिंग ईच अदर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और इसको कहते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। तो एग्जैक्ट रेड के ऊपर ब्लू है ऐसा समझो, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट्स जैसे बोला है, तो कॉमन पॉइंट्स 0 1 0 1 2 इनफाइनाइट। इसके सिवाय और कोई सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। खुद ट्राई करके देखो एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम न्यू अरेंजमेंट अपार्ट फ्रॉम दीज 6। Suppose you are given a circle, give construction to find the center. बैंगल में से एक सर्कल बनाया और बैंगल के सर्कल का सेंटर नहीं पता, तो हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट और फाइंड द सेंटर? You have to draw with me. Step number 1, draw chord AB any length and draw chord CD also any length, but पोजीशन CD की ऐसी होनी चाहिए। अब A के ऊपर राउंडर रख के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे क्रिएट होता है, A और B पे राउंडर रख के 2 आर्क्स, और C और D पे राउंडर रख के उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार करो। Something like this. The place where the two perpendicular bisectors intersect is the center of the circle. If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. Step by step देखो। सबसे पहले फिगर, two circle intersect at 2 points, 1 2, prove that their centers O P lie on perpendicular bisector of common chord। तो कॉमन कॉर्ड पहले ड्रॉ करो, तो ये रहा। कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ये रेड ग्रीन लाइन है। कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is this green line. We have to prove that O and P are on this green line. ये डिफिकल्ट सम है, जैसे लिख रहा हूं वैसे सेम कॉपी करो। गिवन सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस R, सर्कल विथ सेंटर P, रेडियस कैपिटल R। कहने का मतलब रेडियस दोनों सर्कल के सेम होना जरूरी नहीं है। कॉमन कॉर्ड AB, दोनों सर्कल के बीच में एक कॉमन कॉर्ड है AB। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव O and P मतलब सेंटर्स ऑफ द सर्कल lie on perpendicular bisector of common chord. So O and P lie on perpendicular bisector of common chord AB. But if you want to prove that O and P lie on perpendicular bisector of AB, this means you have to prove, therefore, OP perpendicular bisector of AB। और OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB प्रूव करने के लिए
एक तरफ ओपी को परपेंडिकुलर टू ए बी बताना पड़ेगा, मतलब एंगल एम को 90 बताना पड़ेगा, और दूसरी तरफ बाइसेक्टर मतलब ओ एम इज इक्वल टू एम पी बताना पड़ेगा, और ये एम है रेड और ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के दो एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री बताना पड़ता है और दूसरा कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिना जाता है। Centers lie on the perpendicular bisector of common chord. Sorry, AM is equal to MB दिखाना पड़ेगा, my mistake. Chord का perpendicular bisector मतलब M90 and AM is equal to MB. This is what you have to prove. तो पहला टारगेट लेते हैं एंगल M को 90 प्रूव करने। कैसे? देखो ध्यान से, इट इज कमिंग फ्रॉम ट्राइंगल्स चैप्टर, हाउ टू प्रूव एंगल M 90। प्रूफ OA is equal to OB, रीजन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O and रेडियस R। AP is equal to BP, रीजन रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर P and रेडियस कैपिटल R। दोनों सर्कल अलग अलग है। तो अगर मैं इस चार रेडियस को ड्रॉ करना चाहूं तो ऐसा कुछ बनेगा, OA इज इक्वल टू OB, PA इज इक्वल टू PB, OAB, OAOB सेम, PAB, PAPB सेम। देयरफॉर ये ड्रॉ भी करना है, ये क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर OAPB is a kite. You remember from 8th standard, kite is an object where adjacent sides are same. Therefore, OP and AB are diagonals. और जनरल नॉलेज के हिसाब से हमको पहले से पता है कि काइट का पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर OP is perpendicular to AB, therefore angle M is 90। और दूसरा चीज़ हमें पता है कि ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट होता है, OP bisects AB, also OP bisect AB। तो हमने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि OP AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि AB और OP काइट के डायगोनल्स निकले, और काइट के डायगोनल्स परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों होते हैं, एंड देयरफॉर O and P lie on the perpendicular bisector of AB। बस ऐसा एक सेंटेंस लिखना है। So OP bisects AB, angle M 90, therefore OP is perpendicular bisector of AB, therefore O and P lie on perpendicular bisector of AB, therefore इसका जेनरिक वर्जन है सेंटर्स lie on perpendicular bisector of chord या common chord, sum over।
10.4 exercise. Two circles of radius 5 and 3 intersect at 2 points and distance between their centers is 4. Find the length of common chord. जब कॉमन chord आता है तो फिगर कुछ ऐसा होता है. फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर और बीच में होता है कॉमन chord. कौन सा सर्कल बड़ा कौन सा छोटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर है, रफ फिगर है. देयरफॉर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बिग एंड स्मॉल. बट टू सर्कल एंड कॉमन chord ड्रॉ कर दिया. एक सर्कल का रेडियस 5 और दूसरे का 3 है. रेडियस 5, 5, 3, 3. So radius 3, 3, radius 5, 5. और बीच में जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होती है, जो हमने पहले सम में प्रूव किया. ओके, so two circles, radius 5, radius 3, 2 points, distance between their center is 4. Find the length of common chord. Now I am going to take out this particular triangle. This is 3, this is 5, this is 4. This is 90 degree. So two circles of radius 5, 3 intersect at 2 points. Distance between their centers is 4. तो एक सेंटर O ले लेते हैं और दूसरा सेंटर P. O P. कॉर्ड ए बी रेड कलर का और ये M. So from the main diagram we have the diagram which is of a triangle and now we have to find length of common chord. मतलब ये AM फाइंड करेंगे फिर उसको डबल कर देंगे बिकॉज ये बाइसेक्ट होता है, याद है, ये दोनों टुकड़े सेम होते हैं. एंड हाउ टू फाइंड AM, this is the main trick of the sum. You will do pytha of the two triangles which you see in front of your eyes. एक है phi x. रुको, ये जो 4 लेंथ है that was distance between the centers. तो अगर ये पूरा 4 है तो कहना है इससे कि ये x और 4 माइनस एक्स है. ये बाय हार्ट करो. 4 के 2 टुकड़े होते हैं, एक x दूसरा 4 माइनस एक्स. x 4 माइनस एक्स और AM जो एक्चुअल में ढूंढना है उसको m बना देते हैं. m भी नहीं, y. phi 3. So let AM is equal to y और मुझे AM फाइंड करना है ताकि मैं उसको डबल करके कॉर्ड का लेंथ फाइंड कर सकूं. पाइथागोरस phi स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका पाइथागोरस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Expand this. 25 is equal to 16 minus 8x plus x square plus y square और यहाँ पे x square plus y square is equal to 9. ट्वेंटी 25 और ये 16 इसमें माइनस हो जाएगा तो 9
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9, ये रहा सब्सटीट्यूशन, 9 9 कैंसल, 0 इज इक्वल टू -8x, x इज इक्वल टू 0। और अगर x 0 है तो सेकेंड वाले ट्राइंगल को देखो, सेकेंड मतलब माई मिस्टेक, द फर्स्ट ट्राइंगल, द लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए एम, वेयर दिस इज 90 फॉर श्योर, ए एम मतलब y जो हमें ढूंढना है ये है 5 और ये है 4 माइनस एक्स, एंड 4 माइनस एक्स इज जस्ट 4। नहीं 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 नहीं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये इक्वेशन तो रेडी है, x 0 आ गया है, सो 0 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3, और y क्या है ए एम, ये, और ए एम अगर 3 है तो ये भी 3 है, therefore final answer the length of chord AB is equal to AM plus MB, 3 plus 3 6, फाइनल आंसर। ये इतना बड़ा सम है दैट यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस मेनी सम्स लाइक दिस, ये एक पर्टिकुलर सम सीख लो तो मोर देन इनफ। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर उसके दो इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को कट करते हैं। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, मतलब ए बी is equal to CD and they cut each other at M. So given circle with center O, radius R, AB is equal to CD, equal chords, बस। और to prove corresponding segments are equal, तो प्रूव करो कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, मतलब ए एम इज इक्वल टू सी एम एंड बी एम इज इक्वल टू डी एम। तो एम की वजह से जो दो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े भी सेम है। प्रूफ, the first step of proof is draw altitude OX OY, मतलब O से AB पे एक 90 डिग्री का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो और O से CD पे भी एक 90 डिग्री का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो। 90 डिग्री Y। अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू रिवाइज क्विकली। एक सर्कल में एक कॉर्ड है और एक सेंटर है। सर्कल, कॉर्ड, सेंटर। फ्रॉम द सेंटर इफ यू ड्रॉप अ 90 डिग्री लाइन, अगर सेंटर से 90 डिग्री लाइन बनाई, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो वो हमेशा मिड पॉइंट टच करता, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम है। सो हियर ऑल्सो ड्रॉ ऑल्टीट्यूड OX OY, therefore AX is equal to XB and DY is equal to CY।
नहीं, गलत। गलत मतलब ए एक्स एक्स बी, तो सी वाई वाई डी लिखने। ए एक्स एक्स बी सी वाई वाई डी, इसको होल्ड करो। नाउ chords are equal, therefore AB is equal to CD। ABCD सेम है, वो दिया हुआ है, गिवन। therefore half of AB is equal to half of CD, तो हाफ लगा सकते। एंड हाफ ऑफ AB is because of this x, तो AX is equal to CY। हाफ ऑफ AB में x लिया, हाफ ऑफ CD में CY, और XB is equal to YD। तो दो इक्वल कॉर्ड थे, दोनों का मिड पॉइंट क्रिएट किया, तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा सेम है, और नीचे वाला टुकड़ा सेम है। ऐसा करके दिखा दिया। नाउ ट्राइंगल कंपैरिजन स्टार्ट्स। You have to join this and compare these two triangles. Can you guess what are the names of these triangles? It's OXM and OYM. OX is the altitude, therefore 90. OY is the altitude, therefore 90. OM common arm, and OX OY भी सेम। और ये किस खुशी में, तो वापस एक रिवाइज करता हूं कि अगर दो सर्कल सेम है और उसके कॉर्ड भी सेम है, तो ये जो ऑल्टीट्यूड होता है दैट इज ऑल्सो सेम लेंथ। या फिर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है, एक रेड कॉर्ड और दूसरा ब्लू कॉर्ड, दोनों के ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, दोनों के ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे टच करते हैं और दोनों के दो भाग होते हैं। सो इफ द कॉर्ड्स आर सेम, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम। तो कॉर्ड सेम तो डिस्टेंस सेम, ये लास्ट लेक्चर में दिखाया था, पार्ट 3 में सिखाया था। कॉर्ड सेम तो डिस्टेंस सेम, तो OX OY सेम है, OM कॉमन आर्म, एंड 90 so let us write down in triangle OXM and OYM, OX is equal to OY, reason chord same, therefore distance same, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो सेम है। फिर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y 90 डिग्री, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने। और दूसरा OM विच इज कॉमन आर्म। कैन यू गेस अकॉर्डिंग टू विच थियरम हैव वी प्रूव्ड द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? द थियरम इज R राइट एंगल, H हाइपो, S साइड। तो RHS थियरम के हिसाब से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और इतनी मेहनत इसलिए की दैट आई वांटेड XM YM टू बी सेम। CPCT, XM is equal to YM CPCT। Now we have approached finally the end of the sum। हमने दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे
ऑल्टीट्यूड के ऐसे टुकड़े हो गए, उनको कंपेयर कर करके ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई रेडी करके रखा था, एंड एक्स बी इज इक्वल टू वाई डी, एंड कंपेयरिंग टू ट्राइंगल्स एक्स एम वाई एम सेम निकला. नाउ यू हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई में एक्स एम वाई एम ऐड कर दो, प्लस एक्स एम प्लस वाई एम, तो यू गेट ए एम इज इक्वल टू सी एम. फर्स्ट प्रूफ दैट खत्म हो गया. और एक्स बी वाई डी में, एक्स बी वाई डी में एक्स एम वाई एम माइनस कर दो, एंड लुक एट द फिगर. ओनली फ्रॉम फिगर यू कैन मेक आउट एक्स बी में से एक्स एम माइनस करो तो बी एम बचता है, वाई डी में से वाई एम माइनस करो, वाई डी में से वाई एम माइनस डी एम बचा. दिस इज द सेकेंड प्रूफ. ए एम सी एम बी एम डी एम सम ओवर ए एम सी एम बी एम डी एम. You have to see the same sum at least 3 times. If you're bright, then 2 times. If you're brilliant, तो ही rarely एक टाइम में समझ में आता है. तो don't be lazy. See this sum once again, rewind it and see again, write again. तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सम के कितने टुकड़े हैं. If two equal chords of circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. Two equal chords intersect within the circle. सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं. ये अभी भी बड़ा लग रहा है, better. So chord AB intersect chord CD inside the circle at point M, and the center is O. Two equal chords given, circle with center O and radius R, AB is equal to CD. Two equal chords हो गया consider. Prove that line joining the point of intersection of to the center, point of intersection मतलब M और center मतलब O, तो प्रूव करो कि O और M को ज्वाइन करती लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड. मतलब ये दो एंगल सेम प्रूव करना है. टू प्रूव angle OMA is equal to angle OMC. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाती है. एंड हाउ टू प्रूव दिस? लिखो प्रूफ. join नहीं, draw altitude OX and OY. सेम स्ट्रैटेजी. O से AB पे एक 90 डिग्री लाइन OX, O से CD पे एक 90 डिग्री लाइन OY. Therefore, triangle OXM and triangle OYM का कंपैरिजन शुरू करो. अरे भाई
ट्राइंगल ओ एक्स एम ओ वाई एम, एक्स और वाई 90-90, आर मिल गया, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, रीजन 90 डिग्री। ओ एम कॉमन आर्म, ओ एम कॉमन आर्म, और अगर कॉर्ड इक्वल है तो ओ एक्स और ओ वाई भी इक्वल है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, कॉर्ड सेम, therefore distance same, distance from the center same। तो ये कौन सा थियरम? दिस इज RHS थियरम। ट्राइंगल OXM is congruent to triangle OYM, RHS theorem। Therefore can I say कि ये सिंगल डैश के सामने का एंगल M और ये एंगल M सेम है। सो एंगल OMX is equal to angle OMY, CPCT from the triangles। But OMX को OMX ये एंगल को मैं OMA भी बुला सकता हूं, OMA, एंड OMY को मैं OMC बुला सकता। Hence proved, OAM नहीं है, OMA, OMX की जगह OMA, OMY की जगह OMC। Hence proved that the line joining center and the intersection creates equal angles with the chords। ये दो सेम, CPCT। So it's not really difficult, it is coming from triangles chapter। सर्कल जैसा कुछ है ही नहीं खास, सर्कल के कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, बट रियली लिखना तो ट्राइंगल्स के बारे में। फोर्थ सम, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर एक होता है, रेडियस अलग अलग। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। बहुत इजी है। गिवन concentric circle, line intersect circle at A B C D। तो जो फिगर में दिख रहा है that much is given। To prove AB is equal to CD, it's clearly given this time। प्रूफ, ए बी और सी डी दो टुकड़े, ध्यान से देखो तो यहां पे, तो ये दो टुकड़े सेम प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल अलग अलग ड्रॉ करके दिखा रहा हूं तुम्हारे लिए। यू डोंट नीड टू ड्रॉ, बट दिस विल हेल्प यू विजुअलाइज। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, कट कट। छोटे सर्कल में दिस इज बी एंड सी पॉइंट, और बड़े सर्कल में इट इज ए एंड डी पॉइंट। ड्रॉ OX perpendicular to BC and the same OX will be perpendicular to AD also। तो सेंटर से परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं तो सेंटर एक ही है, तो परपेंडिकुलर भी एक ही होगा, इट विल बी कॉल्ड OX। ये तो
छोटे सर्कल का परपेंडिकुलर देख के कैन आई से बी एक्स एक्स सी सेम? बी एक्स एक्स सी, बड़े सर्कल में भी वही कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर है, तो आई कैन से ए एक्स एक्स डी सेम. सिंपली सब्ट्रैक्ट इट, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो. ए एक्स माइनस बी एक्स एक्स डी माइनस एक्स सी, और इसका आंसर सिर्फ मेन फिगर में से पता चल सकता है. लुक एट दैट, ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स में से बी एक्स कम कर दो तो इतना बचता है, ए बी. और एक्स डी माइनस एक्स सी, एक्स डी माइनस एक्स सी, तो पूरा एक्स डी माइनस एक्स सी इतना बचेगा सी डी. Hence proved AB is equal to CD. देखने जाओ तो गिवन और टू प्रूव के बाद सिर्फ 4 लाइन लिखनी, एंड टू प्रूव सम्स आर डिफिकल्ट. सो इफ यू आर रियली फेसिंग प्रॉब्लम और नहीं समझ में आ रहा है तो ये 4 लाइन बाय हार्ट कर लो, बट डोंट लूज मार्क्स बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल सम, आना ही चाहिए. 3 girls, Reshma, Salma, Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter. 5 मीटर का एक सर्कल है, और ये सर्कल पे खड़े खड़े रेशमा, सलमा, मनदीप एक गेम खेल रहे हैं. रेशमा थ्रोज बॉल टू सलमा. मैं रेशमा को यहां दिखाता हूं, ये फिगर फिक्स है, डोंट कीप रेशमा एनीवेयर एल्स. सलमा, मनदीप. रेशमा थ्रोज बॉल टू सलमा, मतलब ये सलमा टू मनदीप, ये मनदीप टू रेशमा, ये, और सेंटर यहां पे कहीं होना चाहिए. So 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws the ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma Mandeep is 6 6, Reshma Salma 6, Salma Mandeep 6, what is the distance between Reshma Mandeep? आर एम ढूंढना है, और आर एम ढूंढने के लिए पूरी प्रोसीजर करनी है. तो दिस इज हाउ द डायग्राम शुड लुक, नथिंग एल्स. एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो क्वेश्चन में दी थी, वो है रेडियस 5. मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं. सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस 5 5. आर एम ढूंढने का टारगेट है join the center and S. Don't you think this is a kite? काइट में ऊपर की दो और नीचे की दो सेम होती है, तो ये 5 5 6 6. And because it's a kite, these are perpendicular to each other, तो ये 90 हो गया. एंड ये और ये टुकड़ा सेम है, काइट में ऐसा ही होता है. सो वी राइट डाउन, वी ऑब्जर्व ओ एम एस आर इज काइट, therefore OS and RM are diagonals. Therefore OS is perpendicular to RM.
देयरफॉर एंगल एक्स 90, बीच वाला जो पॉइंट है इसको एक्स बुलाते हैं, वो 90 डिग्री है. एंड आर एक्स इज इक्वल टू एक्स एम, मतलब एक्स इज द मिड पॉइंट. नाउ ओ एस भी तो 5 है, ओ एस इज 5. तो रेडियस 5 5 5, रेशमा सलमा 6 मीटर, सलमा मनदीप 6 मीटर. रेशमा मनदीप कितना, और रेशमा मनदीप के लिए आर एक्स फाइंड करके डबल कर देंगे. और आर एक्स फाइंड करने के लिए नाउ आई एम ड्रॉइंग अनदर फिगर. आई एम टेकिंग द मेन ट्राइंगल आउट which looks something like this. X R S 6 O 5 5. Look at the figure. Radius 5, radius 5, OR OS. तो ये रहा OR OS. फिर RS 6, and this we have to find out. This is our main question. तो ये हमने पहले भी किया है, अब मैं ये दूसरी बार कर रहा हूँ. ओनली फोकस ऑन दिस ट्राइंगल. जो स्टैंडिंग लाइन फाइंड करनी है उसको y बना दो. ये छोटा x, तो ये 5 माइनस एक्स हो गया. सो फुल लेंथ इज 5, देयरफॉर दिस इज x एंड 5 माइनस एक्स, एंड दिस इज y. इस ट्राइंगल को सीधा कर दो. इट विल बी इजी टू विजुअलाइज कि करना क्या है. SRO बीच में x, this is y, this is small x, this is 5 minus x, this is 6, and this is 5. So this is the second sum जो मैं अब करने वाला हूँ. 2 बार पाइथागोरस करेंगे for first and second triangle. The name of the first triangle is RSX. And second triangle is ROX. X90, X90, RO5, RXY, और ये X, ये 6, ये Y, और ये 5 माइनस एक्स. पाइथागोरस हाइपोस्क्वायर इज साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. पाइथागोरस हाइपोस्क्वायर is side square plus side square. Simplify this a little bit. 36 is equal to 25 minus 10x plus x square plus y square. और x square plus y square की वैल्यू 25 है. Substitute here. This 25 will get subtracted here. 11 is minus 10x plus 25. माइनस 10x लेफ्ट साइड जाएगा, प्लस 10x, और 11 25 में से माइनस होने आ जाएगा. सो 10x इज इक्वल टू 14. x इज इक्वल टू 14 बाय 10. x इज इक्वल टू 1.4. ये आ गया x की वैल्यू. बट आई डोंट वांट x, I want y. Therefore I will
substitute it in the same equation. 25 is equal to x square plus y square में I'll put x as 1.4. Therefore y square is equal to 25 minus 14 14s are 196 मतलब 1.96. Y square is equal to 25 minus 1.96 is 23.04. और ये बाय हार्ट करो कि 2304 वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट किसका? 48 का. Therefore y is equal to 4.8 sum over. तो ये बहुत बड़ा और डिफिकल्ट सम है, और अब तक तो असली आंसर आया भी नहीं है. द रियल आंसर इज 9.6. क्यों? अभी बताता हूँ. पहले एक बार ओवरव्यू समझ लो और 4.8 आंसर आया वो समझो. एक गार्डन में, एक सर्कल में रेशमा is standing here, Salma and Mandeep. Reshma to Salma 6, Salma to Mandeep 6. Center of the circle इधर है 5 5. Our job is to find out the distance between Reshma and Mandeep. तो मैंने शुरू किया था कि ये काइट है. काइट है मतलब ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो आई कैन डू सम पाइथागोरस, एंड पाइथागोरस में मैंने ये जो दो सेम है इसको y लिया था, ये टुकड़ा x था और ये 5 माइनस एक्स था, एंड आई डिड 2 पाइथा एंड फाउंड आउट y, एंड y केम आउट टू बी 4.8. Therefore 4.8 plus 4.8, RM is 9.6. Final answer, the distance between Reshma and Mandeep is 9.6. A circular park of radius 20 is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Said, David are sitting at equal distance. सर्कल के ऊपर एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं अंकुर, सईद, डेविड. 3 boys, Ankur, Said, David are sitting at equal distance on its boundary. Equal distance from each other है तो AD, AS और SD सब सेम. The distance is 20 meters. और 20 मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. वी हैव टू, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर वाया अ टेलीफोन स्ट्रिंग. टॉय का टेलीफोन बनाया है और ये स्ट्रिंग है 20 ना, रेडियस 20 सॉरी, रेडियस 20 का मतलब है फ्रॉम द सेंटर डेविड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 20, अंकुर is at the distance of 20, and Saeed is at a distance of 20. 20, 20, 20. And this black line of the triangle is the string through which they are talking to each other. It's a toy telephone. We have to find the length of the string.
we have to find out this. We'll start the sum by saying let SD is equal to 2x. Therefore dA is equal to 2x. Therefore AS is equal to 2x. तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको हमने 2x ले लिया है. एंड एक्सटेंड दिस, तो ये 90 डिग्री होगा. उसका एक रीज़न है जो मैं अभी बताता हूँ. इसको m x x एक्सटेंड ए ओ टू पॉइंट m. ये सेंटर O है. Extend AO to point M. AM is perpendicular to SD because it's an equilateral triangle. तो अब जैसे ही 90 मिला, we can do something about it. What can we do? I am going to take out two triangles which has 90 degree in it. ध्यान से देखना कौन से दो ट्राइंगल निकाल रहा हूं. द फर्स्ट ट्राइंगल इज OSM. OSM. द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग SD इज 2x. तो ये x होता है क्योंकि ये मिड पॉइंट भी है इक्विलैटरल ट्राइंगल की वजह से. सो दिस इज x. OM पता नहीं, एंड दिस इज 20. The second triangle which I want to take out is ASM. It's the bigger triangle. ASM. AS मतलब अंकुर सहित का डिस्टेंस 2x. SM मतलब x. और AM 20 प्लस y. मैं इसको y बना देता हूं. OM को y लिखो. OM is y. तो ये 20 plus y. Now these two right angle triangles we will do Pythagoras and finish the sum. Pytha of the first smaller triangle is hypos square 400 is side square plus side square. ये 90 है, ये भी 90. और इसमें hypo square is side square plus side square. This is the third sum of textbook जिसमें ऐसे दो पाइथा करने पड़ रहे हैं. 2x square 4x square x square plus 400 plus 40y plus y square. ये x स्क्वायर यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर सामने माइनस कर दो, ठीक है. तो बचा y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 400. Now what is the value of x square from this equation? Can I say it is 400 minus y square? And this value you have to substitute here, 400 minus y square. Three fours are 1200 minus 3y square is y square plus 40y plus 400. राइट साइड लेके जाओ. 4y स्क्वायर
plus 40y minus 800 is equal to 0. Take 4 completely common and it will go and mix with the 0. So y square plus 10y minus 200 is equal to 0. एंड 200 का मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके 10 लाना है, तो 40 इंटू 50, सो y प्लस 50 एंड y माइनस 40 is the middle term splitting. Therefore y is equal to minus 50, y is equal to 40. और वो जो y की वैल्यू मिली, that you have to take and substitute it here. 400 minus y square is equal to x square, and y came out to be 40. 40 आया कि 50 आया? नहीं, 50 and 40 is wrong middle term splitting. ये प्रॉपरली करना पड़ेगा. 200 के फैक्टर्स 2, 2, 2, 5 and 5, 20 and 10. तो y plus 20 and y minus 10. This is the correct middle term splitting. Therefore y is equal to minus 20, y is equal to 10, and this y is equal to 10 you will substitute here. 400 minus y10 is equal to x square. 400 minus 100 is equal to x square. X square is equal to 300. x is equal to root 300, और रूट 300 को सिंप्लीफाई करो तो 10 root 3. एंड इफ x is 10 root 3, तो हमने स्टार्टिंग में लिया था लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सईद टू डेविड 2x, डेविड टू अंकुर 2x, अंकुर टू सईद 2x, और x आया 10 root 3, तो 2x होगा 20 root 3. And this is the final answer. 20 root 3 is the length of the string between anybody. Exercise 10.5. The figure is given, the angles are given. Find angle ADC. Okay. पहले ADC कहाँ है? ये रहा. ADC. Who is creating ADC? ADC is created by chord AC, and same chord AC is making what angle at the center? It is making 90 डिग्री. 60 और 30 90 हो गया. तो ब्लैक कलर्ड कॉर्ड हैज क्रिएटेड 90 एट द सेंटर, तो हाउ मच इट विल इट क्रिएट ऑन द मेजर आर्क? 45. ये बाप बेटा रिलेशनशिप वाला सब है कि एसी कॉर्ड ने सेंटर में 90 बनाया तो ऊपर 45 बनाएंगे. एंड हाउ डू यू राइट दैट? यू हैव टू राइट बाप इज इक्वल टू डबल ऑफ बेटा. इतना बाय हार्ट कर लो तो पता चलेगा कि बाप की जगह पे लिखो एंगल AOC इज डबल ऑफ एंगल ADC. एंगल AOC 90 है, ADC पता नहीं, 2 सामने डिवाइड, आंसर 45. सम ओवर. This same thing will look much easier if the figure was rotated.
अगर ये फिगर ऐसे होता तो it would have been easier to understand. What I would have told you is that there is one imaginary chord AC, and chord AC has created 30 plus 60, 90 at the center. How much will it create at the major arc? बाप बेटा रिलेशनशिप 90 का हाफ 45. A chord of the circle is equal to radius of the circle. Chord is equal to radius. Okay. तो circle radius chord, and chord is equal to radius, so dash dash dash. मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है क्योंकि ये भी रेडियस एंड chord is equal to radius. Therefore this is 60 60 60 equilateral triangle. Find the angle subtended by chord at the point on the minor arc and major arc. तो पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा that since chord is equal to radius, therefore triangle OAB is equal to equilateral या is equilateral. OAB. Therefore angle OA is 60. Therefore अब बाप is equal to double of beta. Angle AOB is equal to double of angle AXB, और AXB मतलब मेजर आर्क का एंगल X. आंसर आएगा 30 because AOB is 60. Angle AXB is 30. और सेकेंड में you will write बेटा प्लस दादाजी इज इक्वल टू 180. तो बेटा मतलब एंगल x, दादाजी मतलब एंगल y इज 180. तो दादाजी इज द एंगल ऑन माइनर आर्क, नीचे वाला एंगल दादाजी बोलते हैं हम y. ax भी 30, y is 180, angle y is 150. Sum over. सो इक्विलैटरल ट्राइंगल की वजह से सेंटर पे 60 हो गया, तो ऊपर 30 और नीचे 150. प्लीज डू नॉट राइट दिस इन एग्जाम. ये बेटा और दादाजी ऐसा कुछ नहीं लिखने का. दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. इन द फिगर find OPR. OPR. इसको घुमा के देखो तो बेहतर समझ में आएगा. See, my chord is PR. PR is my chord which I am imagining. Then this is the angle at the center. This is the beta angle. And this is the दादाजी angle. तो ये बाप बेटा दादाजी वाला रिलेशनशिप है. अगर दादाजी 100 है तो बेटा कितना? सो हाउ विल यू राइट फॉर chord PR एंगल O प्लस एंगल X इज 180. इसको X नाम दे देने का. तो 100 प्लस एंगल X इज 180, एंगल X इज 80.
ये आ गया 80। फिर बेटा और बाप का रिलेशनशिप, एंगल सबटेंडेड ऑन मेजर आर्क एंड सेंटर। सो एंगल ओ, अच्छा ये ओ नहीं क्यू है बाय द वे, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, दिस इज क्यू, ओ तो यहाँ है। सो क्यू और एक्स, दादाजी और बेटा में 100 और 80, 80 मिल गया, और 80 का डबल 160 मिलेगा। एंगल ओ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एक्स, एंगल ओ इज इक्वल टू डबल ऑफ 80, एंगल ओ इज इक्वल टू 160। And then the last part comes, triangle OPR या ORP, जिसमें सेंटर का एंगल O आ गया 160 और ये रेडियस है। सो OR इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू R, therefore angle R is equal to angle P, therefore angle O plus P plus R is 180, जिसमें से O 160 है, और एंगल P और R सेम है, तो मैं दोनों को P लिख देता हूँ। क्यों दोनों को P? बिकॉज OPR ढूंढना है। सो 2 angle P is 20, angle P is 10, angle OPR is 10. Find BDC, very easy। BDC फाइंड करना है, तो पहले मैं ये ऑब्जर्व करता हूं दैट व्हाट आई हैव बीन गिवन इज 69 डिग्री, ये एंड 31 डिग्री इज दिस। इफ आई जॉइन दैट 69 एंड 31, तो ABC ट्राइंगल बन जाता है। सो ट्राइंगल ABC में एक एंगल 31, दूसरा 69, तो तीसरा यू कैन फाइंड योर सेल्फ, 69 प्लस 31 100 का बचा हुआ 80। एंड इफ BC is creating 80 degree, then same 80 degree will be created at D also। ये जुड़वा एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। The angle created by BC at A and the angle created by BC at D are same, therefore answer is 80। You have to write like this sentence में। तो क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is 180, एंगल A plus 69 plus 31 is 180, angle A is 80। BC chord creates angle A and angle D on the arc, hence angle A is equal to angle D, hence angle D is equal to 80। जुड़वा। Find BAC, so whatever is given is in the figure, we have to find BAC, और BAC के लिए मैं BDC फाइंड कर लूँ तो चलेगा, और BDC फाइंड करने के लिए आई एम गोइंग टू चूज दिस ट्राइंगल। EDC में ये 20 है, एक मिल गया, और 130 का लीनियर पेयर 50, तो D मिल जाएगा 110, और D अगर 110 तो A भी 110।
See carefully how to write. You have to choose the correct triangle and start writing from there. In triangle EDC, angle E plus angle D plus angle C is 180, बट E 130 का लीनियर पेयर है, तो E पता नहीं है, लेकिन 180 माइनस 130 कर सकते हैं ना. D पता नहीं है and C is 20, तो 180 minus 130 linear pair 50 plus D plus 20 is 180. D is 110. Angle D and angle A, या पूरे एंगल का नाम लिखो, एंगल BDC and angle ADC are created by the same chord BC. Hence, angle BDC is equal to ADC. Hence, angle ADC is also 110. Find BAC. BAC फाइंड किया ना. ओह, ADC. ADC नहीं आएगा यहाँ पे. BDC ADC नहीं, BAC BDC, BDC BAC, BDC BAC. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. You will have to draw your own figure. Circle 1, 2, 3, 4. Cyclic quadrilateral A, B, C, D. Diagonals intersect at point E. Diagonal AC, BD intersect at point E. DBC 70. DBC 70. BAC 30. BAC 30. Find BCD. तो पहले ये सम सॉल्व करते हैं, सिर्फ BCD ढूंढ के रखते हैं. BCD ढूंढने के लिए 70 का जुड़वा एंगल फाइंड करो. एंड आई राइट chord DC create same angle on arc. Therefore, तो एंगल DC ने कौन सा एंगल बनाया? Therefore, एंगल DAC and DBC are same. तो DAC तो पता नहीं, DBC 70 है, तो ये 70 बन गया. और 70 प्लस 30 100. Therefore, एंगल A is 70 plus 30 is equal to 100. और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आमने सामने के दो एंगल का टोटल इज ऑलवेज 180. एंगल A plus C is 180. रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो A 100, C मतलब BCD. Therefore, final answer angle BCD is 80. ये आ गया 80.
फर्दर ये क्वेश्चन थोड़ा और आगे जाता है. इट सेज इफ ए बी एंड बी सी आर सेम फाइंड ई सी डी. अगर ए बी और बी सी सेम है तो फाइंड ई सी डी, ये वाला टुकड़ा. तो मैं ये कहता हूं कि अगर ए बी और बी सी सेम है, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी सेम, तो ये एंगल सेम, आमने सामने के, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. देयरफॉर इफ दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, और पूरे एंगल 80 में से ये 30 है, तो जो पूछा है वो 50. ज्योमेट्री इज इजी इफ आई एक्सप्लेन इट लाइक दिस, बट लिखना मुश्किल होता है बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन टू मच to convey that information. For example, if I have to solve and write everything which I just told you, what will I write? In triangle ABC, AB is equal to AC is given, hence angle A is equal to angle C, और एंगल A 30 है तो एंगल C 30 हो गया. Hence, angle BCA plus ACD is BCD. Angle plus angle is big angle. BCA अभी अभी ताज़ा ताज़ा 30 निकाला है. ACD पता नहीं, is equal to BCD 80. एंगल ACD इज 50, और एंगल ACD को मैं ECD भी बुला सकता हूं. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 50. दिस इज हाउ मच यू हैव टू राइट डाउन. इफ diagonals of cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertex of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. Diagonals of cyclic quadrilateral are diameters. सर्कल एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर रहा हूं जो रेक्टेंगल है, और उसके डायगोनल्स डायमीटर है, और ये सेंटर है. ए बी सी डी. given diagonals of cyclic quadrilateral, given quadrilateral ABCD is cyclic. AC is diameter, BD is diameter. To prove quadrilateral ABCD is rectangle, कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल है ABCD? सी नाउ प्रूफ. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में कैन आई से एंगल A plus C is 180 and angle B plus D is 180? Yes. एंड दूसरी चीज, इफ AC and BD are diagonals and diameters, AC और BD डायगोनल तो है ही और डायमीटर भी है, कॉमा, they have to intersect
एट सेंटर ओ। तुम दो डायमीटर बनाओ, कहीं पे भी दो डायमीटर बनाओ, तो वो नेचुरली दोनों एक दूसरे को सेंटर पे कट करेंगे। देयरफॉर डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि डायमीटर में ओ ए और ओ सी सेम और ओ बी ओ डी सेम, क्योंकि डायमीटर है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ओ इज द सेंटर, तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है दैट कंपल्सरी डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180 एंड डी प्लस ए 180। यहां पहुंचना था इसलिए इतना सब लिखा। I had to prove that this is a parallelogram based on the diagonal business so that I can write adjacent angles are supplementary. और cyclic quadrilateral की वजह से मुझे लिखने मिला a plus c 180. So a plus c 180, b plus d 180 और ये a b b c c d d a 180 मैं अब ये यूज करने वाला हूं साथ में। फ्रॉम वन, इसको वन नाम देना, एंगल ए प्लस सी इज 180, बट ये दो देखो